So students, we were doing the problems related to the number of elements in the sets, and now we are taking another problem. In a group of 800 peoples, 500 can speak Hindi, 450 can speak English. Means we are having number of elements in Hindi Union English. Means total group कितने का है? 800 peoples का है, 800 peoples. And out of these 800 peoples, 550 can speak Hindi. So we will denote by NH. Those persons who can speak Hindi, we will denote it by NH, and it's 550. And the persons who can speak English, we will denote it NE. Number of persons who can speak English language, and it's 450. So in this way we can find out how many can speak both Hindi and English. It's a simple formula that we have to use here to calculate that how many people can speak both Hindi and English. That means simply we have to find out H intersection. So let us apply the formula. Number of elements in H union E, this is equal to number of elements in H plus number of elements in E and minus number of elements in H intersection E. So we have to find out H intersection E. So let's take this towards left side, and it will become plus and H intersection E is equal to NH plus NE, and if we will shift towards right side, it will become minus H union E. So here we are having the persons who can speak Hindi 550, persons who can speak English it's 450, and those persons who can speak Hindi, English and all peoples, means total calculation of the peoples is here 800 peoples, means 1000 minus 800, here we get 200 peoples. Means 200 peoples are like that they can speak both the languages Hindi and English. In this way we can solve more problems related to the concept of number of elements and the formula that we have already learnt in our topic. In a school there are 20 teachers who teach maths or physics. Means total calculation, maths or physics. Maths or physics. So total calculation of the teachers is 20. 20 teachers are there in the school who can teach maths or physics. यानी ऐसे 20 टीचर्स हैं जो आइदर मैथ्स पढ़ा सकते हैं और फिजिक्स पढ़ा सकते हैं. उसके बाद हमें बताया गया है who teach maths 12 who teach maths or physics. Of these 12 teach maths. इनमें से मैथ्स कितने पढ़ा सकते हैं? 12 teachers who can teach mathematics is 12 teachers who can teach mathematics, and 4 teach maths and physics. 4 teachers are here who can teach maths and physics. So we will use intersection for the end. मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं और फिजिक्स भी, मीन्स वो दोनों चीजें पढ़ा सकते हैं. तो दोनों पढ़ा सकने वाले टीचर्स हमारे पास 4 हैं. हाउ मेनी टीच फिजिक्स, मीन्स कितने टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाएं. तो हियर वी आर हैविंग, वी हैव टू फाइंड आउट NP. अगेन वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला. MUP means maths or physics. Only maths. It's not only maths. Those who can teach maths, जो maths पढ़ा सकते हैं, and those who can teach physics minus those who can teach maths and physics, जो दोनों पढ़ा सकते हैं. तो इस तरीके से
फिजिक्स पढ़ाने वाले। तो इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे। दोज टीचर्स हु कैन टीच मैथमेटिक्स वी आर हैविंग 12 minus those who can teach both it's 4 and those who can teach it's minus 20 means total teachers who can teach physics is minus 24 minus 12 यानी minus 12. So sign minus is not applicable. We will just take physics पढ़ाने वाले teachers हमारे पास 12. इस तरीके से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि कौन हमारा जो है वो क्या काम कर सकता है. आइदर इट कैन डू दिस और दोनों कर सकने वाले, या किसी एक में स्पेशलिटी मीन्स सिर्फ ही मैथ ही पढ़ा पाए, उसको हम किसे डिनोट करेंगे? जो ओनली मैथ्स पढ़ा सकता है, फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता. M-3 इसका फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इसको ए और बी से अगर हम डिनोट करें तो A-B के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A-B. जो टोटल A है उनमें से हम कॉमन पार्ट को अगर माइनस कर दें A इंटरसेक्शन B को, तो सिर्फ वो बचेंगे जो A के लिए एप्लीकेबल है. हम बात कर रहे थे मैथ्स और फिजिक्स की. तो सपोज कीजिए जो सिर्फ मैथ्स पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते, तो टोटल जो टीचर्स हैं मैथ्स पढ़ाने वाले उनमें से जो दोनों पढ़ा सकते हैं मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, उसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें वो टीचर्स मिलेंगे जो ओनली मैथ्स टीच कर सकते हैं. ओनली मैथ्स नॉट फिजिक्स. इसी तरीके से ओनली फिजिक्स नॉट मैथ्स, उसको निकालने के लिए भी हमारे पास जो टोटल फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनमें से उनको माइनस कर देंगे जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ा पा रहे हैं. तो हमें मिलेगा वो टीचर्स जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है कि इन ए ग्रुप ऑफ 50 persons वी आर हैविंग ए ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज ऑफ टोटल 50 persons. 14 drink tea. Out of 50 persons means we are having total कितने persons है? Total persons हमारे पास हैं 50, जिसमें से 14 drink tea. Those who will drink tea कितने हैं? टी ड्रिंक करने वाले 14, but not coffee. इसमें एक चीज और लगा दूं. Those who drink tea but not coffee, इसको हम T-C से. Those who used to drink tea we will denote it by N of T, and those who will drink coffee we will denote it by N of C. So T-C क्या मतलब हुआ T-C का? यानी सिर्फ टी ड्रिंक करते हैं, कॉफी ड्रिंक नहीं करते. T-C से हम क्या समझते हैं? ओनली टी नॉट कॉफी. तो ऐसे हमारे पास दिए हुए हैं persons 14 पर ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी. 14 ऐसे पर्सन्स हैं जो टी ड्रिंक करते हैं लेकिन कॉफी ड्रिंक नहीं करते. एंड 30 ड्रिंक टी. 30 ऐसे हैं जो हमारे टी ड्रिंक करते हैं. 30 पर्सन्स ऐसे हैं जो टी ड्रिंक करते हैं. फाइंड हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ. तो हमें बोला है पहले तो आप वो निकालिए जो टी और कॉफी दोनों ड्रिंक करने वाले. अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो सिर्फ टी ड्रिंक करते हैं कॉफी नहीं करते, उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो टी ड्रिंकर्स हैं उसमें से हम उनको माइनस कर दें जो दोनों पीने वाले हैं. दोनों टी इंटरसेक्शन कॉफी यानी दोनों ड्रिंक लेने वाले हैं, तो हमें T-C मिलता है. तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? T-C हमारे पास है और T हमारे पास है, तो इंटरसेक्शन हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दोज हु यूज्ड टू ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, वो हम यहाँ से फाइंड आउट करने जा रहे हैं. इसको यहाँ पर ले जाके हमने सब्ट्रैक्ट किया है. सो व्हाट इट बिकम्स? सिंपली हमने कुछ नहीं किया. देखिए इसको लेफ्ट साइड लाए हैं, पॉजिटिव हो गया. ये हम राइट साइड लेके गए हैं, नेगेटिव हो गया. हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? दोज हु यूज्ड टू ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी. तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु यूज्ड
हमने वो माइनस कर दिए जो ओनली टी पीने वाले हैं, कॉफी पीने वाले नहीं है। तो ये हमारे पास 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16 हमें ये मिल गया है जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं इंटरसेक्शन पार्ट में। अब देखिए हमारे पास जो है यूनियन है, टोटल पर्सन्स का मतलब है टी यूनियन सी, ये हमारे पास 50 और इंटरसेक्शन है और एंटी है। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, ये हमारा पार्ट निकल चुका है। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, यानी C माइनस टी निकालना है। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, तो C माइनस टी निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास C होना चाहिए, तो C नहीं है। नंबर ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स हु यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ चुका है, इसको यहाँ लिख लीजिए। T इंटरसेक्शन C हमें मिला है 16, इंटरसेक्शन C 16 मिलने के बाद 4। अब हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, N T यूनियन C इज इक्वल टू NT प्लस NC माइनस T इंटरसेक्शन C। इसमें हमारे पास यूनियन 50 है एंड टी ड्रिंकर्स 30 है, कॉफी ड्रिंकर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, इंटरसेक्शन हमारे पास 16 है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 50 माइनस 30 प्लस 16 इज इक्वल टू N ऑफ C। लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया सारे हमने डिजिट्स को, तो कॉफी ड्रिंकर्स की कैलकुलेशन हमारे पास 50 माइनस 30 20 प्लस 16 36 मीन्स 36 पर्सन्स ऐसे हैं जो कॉफी ड्रिंक करते हैं। अब हमें निकालना है हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, वो फाइंड करना है जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, टी नहीं पीते। यानी निकालना क्या है, हमें सिर्फ कॉफी पीने वाले, नॉट टी। C माइनस टी फाइंड आउट करना है, दोज हु यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। तो इसके लिए हम हमारे पास जो है NC में से माइनस करेंगे NT इंटरसेक्शन C, ये माइनस करेंगे NC में से, NC 36 है माइनस इंटरसेक्शन हमारे पास 16 है, तो ये आ गया हमारे पास फिर से 20। मीन्स ऐसे पर्सन्स जो सिर्फ कॉफी ड्रिंक करते हैं, नॉट टी। So in this way we can solve the problems related to the difference, means जो सिर्फ A का काम करते हैं, B का नहीं करते हैं, वो है A माइनस B, और जो सिर्फ B करते हैं, A नहीं करते हैं, that is B माइनस A। और दोनों को निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूले यूज किए हैं वो क्या है, A माइनस B अगर हमें निकालना है तो A में से इंटरसेक्शन माइनस की है, और अगर हमें B माइनस A निकालना है तो उसके लिए भी हमने B में से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट किया है। इस तरीके से हम सिर्फ वो निकाल सकते हैं जो B करते हैं, A नहीं करते, चाहे वो पढ़ाने वाले टीचर्स हो, चाहे वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, कॉफी ड्रिंकर्स हो, कोई भी हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। So thank you my dear students, thank you.